Hi guys, welcome to our channel. I'm Aishwarya. मैं सूरज केंद्रे. Wait, let me just fix the mic. Okay, हाँ. start. Welcome back. अच्छा. हाँ. सो वी जस्ट काय होतं की वापस माझा पहिला व्हिडिओ आहे नर्वसनेस वाले. युट्यूबवर आहे का ट्युटोरियल? काढलं तू त्याचं बी काढलं काय ते मला मॅन्युअल दे. Hi guys, welcome to this channel. I'm Aishwarya आय एम सूरज. and this is our personal lifestyle vlogging channel. And आज का वीडियो क्या है वो सूरज बताएगा. Some days back we while scrolling YouTube, so we gone through some vertical farming concept, so we decided to try this one at our home also. Okay, little backstory. He is a professional in agriculture and he was trying from some days to try this vertical farming concept. At our home. Yeah, because we have this huge balcony over here. So we ordered this vertical farming kit from Amazon, and it costed us around 2,500 rupees. And now we are going to open this. And ये वाला जो है ना, this is a smaller one. इसमें दो थे, which was around 3,500. वो थोड़ा बड़ा था, but उसके रिव्यूज में थोड़ा सा था कि वो हवा से गिर जाता है वगैरह. and यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा थी. We tried the smaller one, so let's open it. yeah, if we will face the success, then we will try the bigger one also. इसमें से अच्छे से फार्मिंग हुई तो हम लोग We will order the bigger one also. Soft motors are used in coolers also. So that's it. This is just a kind of a submersible pump जो water को flow करने में मदद करेगा. Yes. Then I'm going to open this one. Yeah, this is nothing like the bucket. Okay, this You is can make it at home ये also. तो ये तो bucket ही दिख रहा है पूरा. This is looks like bucket and it is made for vertical farm. Yeah, the nutrients. Okay, so we got the We have nutrients. some seeds, some nutrients. This is, I think, the upper part of. Yeah, that one is upper part. त्याच्यामध्ये 3 part आहेत. Okay. What is this? This is TDS 10. Yeah, this is कशी TDS आहे check. वो पानी का एसिडिटी चेक करने के लिए pH लेवल. How to open this? दिस वन इज pH मीटर. ठीक है, इसको ओपन करके पानी का TDS चेक करते हैं इसमें. न्यूट्रिएंट्स उसको कुछ नहीं है. दिस इज आल्सो द बेस शीट. These are the support for roots supporters. You can त्याच्यात see. plants लागतील ना. या उसके लिए पहले कोकोपीट है, इसमें सीड्स रख के उसके अंदर डाल के फिर तो सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे. The specialty of this kit is no soil is being used in the whole process. Yes. This farming needs no soil. It only works on the Water and nutrients. Right. Okay, there is nothing in the box. That's it. So let's put it ahead. ये मैनुअल है, खोल के पढ़िए. हमने तो पढ़ाई कम करी हुई है. Steps on it. So follow the steps then. Has some safety information, some how to assemble things, and then how to germinate the seeds, how many days it will take, and everything. Basically. So keep the motor down. In the bucket. Take the plug outside. What is this used for? I think ते nuts ना हे लावायसाठी असतील एकमेकांना. तो इसका पूरा सेटअप मैनुअल में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, नॉट सो डिफिकल्ट. शुरुआत में लग सकता है. मोटर सबसे नीचे रखनी है, उसके ऊपर पाइप डालना है. फिर तीनों पार्ट्स डालने के बाद सबसे छोटा पार्ट्स ऊपर से लगेगा. बस फिर इन तीनों पार्ट्स को और बकेट को अच्छे से नट से फिट करना है ताकि वो सेटल हो जाए और हवा आए तो नीचे गिरे ना. ये बन गया. अभी इसको वो बोर्ड में लगाने का चालू करना है. कितने टाइम तक चालू रखें? Now let's wait for the seeds. कोथिंबीर है, पालक है. अरे वो न्यूट्रिएंट्स है बेटा. Seeds कशाचे? सीड्स उसमें है. So we have some vegetable seeds. ये कोरिएंडर के है. स्पिनच, ये स्पिनच पालक के सीड्स है. उन्होंने कुछ बेसिल सीड्स भी प्रोवाइड किए हैं फर्स्ट टाइम अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो. और ये पाकचोई के सीड्स है जिसे हम पाकचोई, आई थिंक ये स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश या कोई और वर्ड है जिसको हम ये बोलते हैं सरसों के सीड्स है. बट ये इसमें आएगा नहीं क्योंकि इसको तो ठंड में आने वाला क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है. मुझे नहीं लगता दिस विल गेट सक्सीड इन दिस सिस्टम. What about spinach? और स्पिनच तो आ जाएगा. Okay guys, so it took us around some 20 to 25 minutes to set this up और अभी ये finally set हो चुका है completely.
नाउ लेट मी टेल यू कि इसमें ये जो सीड्स दिए हुए हैं इसको पहले जर्मिनेशन के लिए आई थिंक 24 आवर्स के लिए रखना पड़ेगा. सूरज इज ब्रिंगिंग सम वाटर. कोकोपीट डाल के रखती हूँ मैं तब तक. सीड्स कुठे ठेवायचे याच्यात कसं काय जातील सीड्स. अरे ऊपर रख दे बस. तो इसमें जो है वाटर का जो टीडीएस है वो 80 ppm से कम रहना चाहिए. तो पहले हम जो कारपोरेशन का वाटर लिया हुआ है हमने यहाँ पे, इसका ये चेक करते हैं टीडीएस. इसको ऐसे होल्ड करके रखना है. 63. So we have planted all the seeds and we'll keep it like this. Let the seeds away. Okay. तो इसमें से 4 कोरिएंडर है, 4 स्पिनच है and 1 will be basil and see how that grows. It's at the bottom right now, but as soon as it reaches the water, it flops up. एक एक लाना है. में 2 न्यूट्रिएंट्स है. मेरे हिसाब से ये डीएपी है, डायमोनियम फॉस्फेट. और ये जो है समथिंग लाइक नाइट्रोजन. अभी एक्चुअली है क्या समझ में नहीं आ रहा है, बट दिखने से ऐसे लग रहा है कि ये नाइट्रोजन सोर्स है. सोविंग करते हैं तो सोविंग के टाइम पे डीएपी डाला जाता है, जिसका काम होता है जो पौधे के रूट्स होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से करता है. तो अपन इसको ऊपर से ही डाल देते हैं, पानी में डायल्यूट हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है. वैसे तो उसमें बोला गया है कि आपको 2 बॉटल में इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है, बट नो इशू. अगर आप ऐसा भी डाल दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये मार्केट में भी मिल जाएंगे. ये तो यूरिया दिख रहा है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये बाद में लगता है. So this is how it looks right now. कोकोपीट हाइड्रेट हो रहा है. और अब इसका जो प्रोग्रेस है मैं आपको कल दिखाती हूँ. So let's see it after 24 hours. सो 24 आवर्स के बाद ये जर्मिनेट नहीं हुआ था. इट टूक अस 48 आवर्स. 2 दिन के बाद की ये ग्रोथ है एंड अभी 15 से 20 दिन वी कैन कंसिडर इसको पूरा आने के लिए. तो पार्ट 2 में मैं आपको इसका आगे का प्रोग्रेस बताऊंगी. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2.